A very good morning and assalamu alaikum students. I'm your teacher Miss Amina Ismail. Welcome you all in the English class, and today we are going to start the reading as we have done in the previous class. The chapter that we have started is Pip Meets a Convict. So students, in the previous lecture we have done the word meanings and page 14 and 15 reading, and I have done the explanation and translation as well. So let's have a look on the previous lecture. In the previous lecture we have discussed that there was a boy named Pip, जिसका real name जो है वो Philip है, and his first name is Philip and his family name is Pip. But when he was very young तो उससे बोला नहीं जाता था, so he used to call Pip. So everybody else called him Pip as well. But after that, one day he went to the churchyard and he was looking at his parents' tombstone, and at that time there was a person came out from a tombstone and he was basically a prisoner. वो एक भागा हुआ खतरनाक सा कैदी था, and he had a rag on his head and he had chain on his leg, और उसके पाँवों में जो थी वो चेन बंधी हुई थी, and he had a lot of scratches on his face and he was very horrible in the appearance. He looked at the Pip and he hold him from his chin, and he just checked his all the pockets and he couldn't find any sort of money, but he found a piece of bread. He ate the bread ravenously and then he asked about his parents, where are they? So Pip pointed towards the tombstone of his parents, and then he asked about his place where he lived. So he pointed to the village that is far a mile far away from the church. So this was about the explanation of page number 14 and 15. Now we are going to start the reading of page number 16. Oh, said the man, so who do you live with? Oh, said the man. आदमी ने कहा, oh मतलब he felt sad that his parents are dead. Who do you live with? किसके साथ रहते हो तुम? If I let you live, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ, which I haven't made up my mind about, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं है. My sister, sir, Mrs. Joy Gargery, wife of Joy Gargery, the blacksmith, sir. मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ जिनका नाम है जोए गार्जरी, जो कि वाइफ हैं जोए गार्जरी की, यानी मिसेस हैं उनकी. ब्लैक स्मिथ ई सैड ही, उसने कहा ब्लैक स्मिथ, एंड लुक्ड डाउन एट हिज लेग, और उसने अपने पाँव की तरफ देखा. एज यू नो कि उसके पाँव में क्या बंधी हुई है? आयरन चेन बंधी हुई है. आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स एंड टाइटेड मी back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes, यानी उसने मुझे अपने बाजुओं में लिया और बैक यानी पीछे डाला, यानी कंधों पे सवार किया और मुझे घूरता रहा. Now look here, he said. अब देखो यहाँ. I need to decide if I will let you live. Do you know what a file is? अगर मैं तुम्हें रहने देता हूँ ज़िंदा, आई नीड टू डिसाइड, अगर मैं तुम्हें रहने देता हूँ ज़िंदा तो तुम्हें पता है कि कौन सा फाइल का मतलब तो है वो औजार जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को कट कर सकें, एज वी हैव डिस्कस इन द वर्ड मीनिंग. सो यस सर, एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़? यस सर, तुम्हें पता है ये मतलब किस चीज़ से टूटेगी, क्योंकि उसके पाँव में क्या बंधी हुई है? चेन बंधी हुई है. आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, उसने मुझे और टिल्टेड का मतलब होता है लिटाना या टेढ़ा करना. दिस मेड मी फील हेल्पलेस, और इस मतलब वो जिस तरीके से उसे हैंडल कर रहा था वो उसे बहुत ज़्यादा मतलब अपना को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था. आई वॉज इन डेंजर, मैं बहुत ख़तरे में था. यू गेट मी अ फाइल, ही टिल्टेड मी अगेन, तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे? वो औजार लेकर आओगे जिसके थ्रू जो है उसकी चेन को कट किया जा सके. एंड यू गेट मी ग्रब, ही टिल्टेड मी अगेन, यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मेरे लिए लेकर आओगे. ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा से तिरछा किया. और आई विल हैव योर हार्ट एंड लीवर आउट, ही टिल्टेड मी अगेन, या तो फिर मैं तुम्हारा दिल और जिगर जो है वो निकाल दूँगा अगर तुमने मेरे लिए ये दोनों चीज़ें नहीं लेकर आए. आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटन, मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया. एंड होप दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, और मैंने उम्मीद की कि वो मुझे नहीं फेंके. आई क्लाइंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैंने मजबूती से उसको पकड़ा. सीम टू जम्प ओवर इट्स ओन वेदर कॉक,
Then, still holding me up on the tombstone, he went on. Early morning, bring that file and the grub. You bring the lot to me at that old battery over there. If you do it, and if you don't say a word about me, I will let you live. यानी अगर तुम मेरे लिए ये दोनों चीज़ें लेकर आओगे, कहाँ पे? ओल्ड बैटरी, मतलब पुराने किले में, तो मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगा. इफ़ यू फेल, और अगर तुम नाकाम हो गए और से एनी थिंग एट ऑल अबाउट मी, और किसी को मेरे बारे में बताया, देन योर हार्ट एंड योर लीवर शैल बी टॉर्न आउट, रोस्टेड एंड ईटन. तो तुम्हारा दिल और जो जिगर है वो मैं फाड़ दूँगा, निकाल दूँगा और उसे रोस्ट करूँगा, उसे खा जाऊँगा. नाउ आई एम नॉट अलोन. अब मैं अकेला नहीं हूँ. देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी. इन कंपैरिजन विद हिम आई एम एन एंजल. ठीक है. That young man can hear us now. That young man has a secret way of getting a boy and at his heart and at his liver. अब मैं अकेला नहीं हूँ. उसने बोला मेरे साथ एक आदमी भी है जो कि ये सारी बातें सुन रहा है, और उसके मुकाबले में मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो फरिश्ता हूँ. और वो जो आदमी है वो तुम्हारा जो है वो जो है द यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट ऑफ गेटिंग अ बॉय. और उसके बाद एक सीक्रेट है कि बॉय को लेकर आ सके, उसके दिल को भी और उसके लिवर को भी. और जो यंग मैन है वो हमें सुन रहा है. अ बॉय काइंट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन. जो बच्चा था, एक बॉय जो है वो अपने आप को नहीं छुपा सकता उस आदमी से. अ बॉय में लॉक हिज डोर, मे बी वार्म इन बेड, मे टक हिमसेल्फ अप, मे ड्रॉ द क्लॉथ over his head, may think himself comfortable and safe, but the young man will softly creep his way to him and tear him open. I am keeping that young man from harming you at the present moment and great difficulty. I find it very hard to hold that young man off of your inside. Now what do you say? यानी वो उसे एक बंदे से खौफज़दा कर रहा है कि वो जो अगर तुम कुछ भी कर लो वो तुम तक पहुंच जाएगा. आई वॉज सो फ्राइटेंड बट आई सेड दैट आई वुड गेट हिम द फायर, आई वुड गेट हिम द ब्रोकन बेड ऑफ फूड, आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं बहुत खौफज़दा था, बट मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो फाइल यानी वो टूल लेकर आऊँगा, और मैं तुम्हारे लिए वो खाना भी लेकर आऊँगा, और पुराने किले में मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त, जल्दी सुबह सवेरे जो है मैं उसके लिए सारी चीज़ें लेकर आऊँगा. बेसिकली वो उसे खौफज़दा कर रहा है एक आदमी से कि जो तुम्हारा दिल वगैरह निकाल देगा, तुम्हारा लिवर भी निकाल देगा. तुम चाहे जितना भी सेफ हो जाओ, बट मैं तुम्हें बचा रहा हूँ उस आदमी से. अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा. आई प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, सेड द मैन. अपनी ज़िंदगी मतलब आई प्रॉमिस्ड ही टुक, अपनी ज़िंदगी के लिए मुझसे वादा करो, यानी अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो मुझसे वादा करो. आई प्रॉमिस्ड एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉम्बस्टोन. और उसने मुझे टॉम्बस्टोन के से उतारा और मैंने उससे वादा किया. नाउ ही वेंट ऑन, रिमेंबर दैट प्रॉमिस. फिर यानी वो गया और उसने क्या कहा कि रिमेंबर दैट प्रॉमिस और रिमेंबर दैट यंग मैन गेट होम. और ये उस आदमी को भी, यंग मैन को भी याद रखो. गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड. यानी उसने खौफज़दा होकर घबरा कर जो है उसे गुड नाइट कहा. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी. ये बहुत लंबी रात होगी मेरे लिए, सेड ही. ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श. आई विश आई वॉज अ फ्रॉग और एन ईव. उसने एक कोल्ड वेट फ्लैट मार्श मतलब उसने दलदली उसको देखा, और उसने क्या सोचा दलदल को देख के, भाई काश में एक मेंढक होता. ही हग्ड हिज शेडरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म. उसने अपनी बॉडी को खुद ही से हग किया दोनों आर्म से, जिससे हम फोल्ड कर दोनों आर्म को अपनी बॉडी से टच करते हैं ना. ही डिड दैट इन द सेम वे एज इफ़ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर एंड लिम्प्ड टूवर्ड्स द लो church wall. He got over it slowly, like a man whose legs were numbed and stiff, and then turned round to look for me. When I was him turning, I was fighting again and ran home without stopping. हुआ ये कि जब वो गया, उसकी बॉडी जो थी बहुत बुरी तरीके से काँप रही थी. उसने अपने आप को पकड़ा, संभाला, और वो लंगड़ाता हुआ चर्च वॉल की तरफ गया. एंड देन वो अपने किस तरीके से वो भागता हुआ तेज़ी के साथ, यानी उसकी टांग जो थी वो लड़खड़ाता हुआ वहाँ से गया.
एंड आई वॉज फ्राइटनिंग अगेन. मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था और रैन होम विदाउट स्टॉपिंग. और भागा घर की तरफ बगैर रुके. मैं बहुत तेज़ी से अपने घर की तरफ भागता रहा. I hope you all have understand the lecture and read the chapter again and understand it as well. So that's all from today. We have done the explanation and reading of chapter Pips Meet a Convict. Allah Hafiz students, take care of yourself and be safe.